Hello everyone, welcome to Sriram's IS. I hope everybody is doing good. Things are fine at your place. Let's start with today's session where we'll discuss the articles associated with 20th of September. So जो डिस्कशन होगी उसके अंदर ये सारे आर्टिकल्स होंगे आज जो हम कवर करेंगे. हम बात करेंगे सी वीड्स के बारे में. आपके जीएस पेपर 3 प्लस प्रीलिम से लिंक कर सकते हो. We'll talk about cellulitis disease, GS paper 3 again and prelims. Then we'll talk about National Board for Wildlife, GS paper 2 and 3 both, but specifically prelims के लिए ज़्यादा important रहता है. ठीक है. इंडिया का सेमीकंडक्टर, इंडिया सेमीकंडक्टर फॉर फ्यूचर, तो दिस वाज एन आर्टिकल, एडिटोरियल था, तो इसको डिटेल में लेंगे. जीएस पेपर 3 से अगेन यू कैन कनेक्टेड विद. तो ये जो आर्टिकल है ये आई वुड से मेंस के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा रहने वाला है. तो क्या इंडिया ने अचीवमेंट्स करी हैं इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं, टेक्नोलॉजी मिशंस की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो इन सब डोमेन्स में आप इस इंडिया के सेमीकंडक्टर एम्बिशंस को हम उसके साथ कनेक्ट करेंगे कि हमारी करंट सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इंडिया की, उसका करंट स्टेटस क्या है, क्या हमें दिक्कतें आ रही हैं, क्या सॉल्यूशन है. ठीक है, ये तीन हमारे पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेंगे इस पर्टिकुलर आर्टिकल के एसोसिएटेड. एंड लास्ट विल टॉक अबाउट पीएम आशा, दैट इज प्रधानमंत्री अन्नदाता ए संरक्षण अभियान. सो ये जो स्कीम है अन्नदाता संरक्षण अभियान, जीएस पेपर 2 से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो. ठीक है, सो ये हम डिस्कस करेंगे आज. सेशन अच्छे लगते हैं तो प्लीज मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दिस लेक्चर. यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो. कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक दे सकते हो, राइट. एंड या दिस ऑल यू हैव टू डू. चलिए शुरू करते हैं विदाउट टेकिंग एनी मच टाइम. अब न्यूज में इसलिए है क्योंकि हाल ही डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, अंडर विच मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग. So this department has designated ICAR, Central Marine Fishery Research Institute, इसको designate किया है as Center of Excellence for Seaweed Cultivation. तो हम बात करेंगे seaweed के बारे में, because department has designated this institute as a Center of Excellence. मतलब it has been recognized as a leading institution, you can say, for research and development of seaweed cultivation. Seaweed cultivation के ना बहुत purposes हैं. Important है ये for various purposes, even for food, for biofuel, for pharmaceuticals. So let's talk about seaweeds. It is a common name for countless species of marine plants and algae that grow in the ocean as well as in rivers, lakes and water bodies. So seaweed एक term है for different kinds of plants and algae जो कि ocean, river, lakes, water bodies में रहते हैं. They can be in various colors, red, green, brown, black, in various size also, right. They can be very small or they can be as large as underwater forest also. So they vary in size. Now seaweeds are generally anchored to the sea bottom or other solid structures by root-like holdfast. क्या बोल रहे हैं, देखो जो seaweed है ना, that is attached to sea floor or other solid objects using structures called holdfast. मतलब root-like आप लगा लीजिए, they act like roots. अब लेकिन क्या होता है, roots की तरह ठीक है, they look like, they act like, but they don't absorb nutrients like plants के roots, right. They only, their purpose is that they keep the seaweed in place, right. तो seaweed grows best in shallow water. ये बहुत important point है ये वाला shallow water वाला, क्योंकि यूपीएससी यहाँ से सवाल पूछ सकती है. जहां पर पानी की डेप्थ इज नॉट मोर देन 50 meters deep, तो वहां seaweeds are well established, well grown. Now as far as their uses are concerned, कुछ seaweeds जो हैं they can be eaten and many are valuable for the humans also. मतलब seaweed जो है it is used to make fertilizers for plants and it also produces various other polysaccharides. ठीक है, तो high amount of antioxidants present in the seaweed protects the body from damages caused by the free radicals and protects cells from their impact.
Seaweed has lot of antioxidants. They help protect the body from damage that is caused by harmful molecules, you can say these radicals. They help to keep the cell safe. Scientists found that seaweed contains substances that help the body make proteins that burn fat more efficiently also. Eating seaweed can control diabetes also. They can help in balancing the blood sugar level also. Yes, this is one of the advantage of it. Now, many seaweed contains anti-inflammatory and antimicrobial agents. Many seaweeds have substances that reduce inflammation also. They are used in making products like toothpaste, for example. Right? They are effective binding agents. फ्रूट जेली में फिर यूज किया जाता है, राइट? ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक्स के अंदर यूज किया जाता है, स्किन केयर प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है. तो सीवीड कल्टीवेशन जो है इसके नंबर ऑफ एप्लीकेशंस और यूजेस हैं. आप सोचोगे कि क्या ये प्लांट्स एंड एनिमल्स जो 50 मीटर तक की डेप्थ में उग रहे हैं, ये क्या मतलब ये हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं और स्किन प्रोडक्ट्स में भी यूज होते हैं. देयर आर वेरियस यूजेस ऑफ सीवीड. तो या यहाँ से सवाल आपके लिए बन सकता है. ठीक है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है. कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज, अच्छा हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल से पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप पॉलिटी कवर करना चाह रहे हो, इफ यू आर लुकिंग आउट फॉर एनी सेशन दैट हेल्प्स यू इन पॉलिटी, सो डोंट वरी, फ्री ऑफ सेशंस हैं ऑन दिस प्लेटफॉर्म ओनली बाय अदर मेंटर. यू कैन रेफर दीज सेशंस. कोई करंट अफेयर का कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको पढ़ना है, स्पेसिफिकली कोई एक सिंगल टॉपिक, तो स्पून फीड सीरीज है बाय प्रज्ञा मैम, यू कैन रेफर टू दीज. ये डेली न्यूज एनालिसिस का सेशन है दैट आई गिव डेली, यू कैन टेक दीज सेशंस ऑल्सो. फ्री ऑफ कॉस्ट है हर एक कॉन्टेंट. और प्लस इंपॉर्टेंट बात यह है कि विदाउट चार्जिंग अ सिंगल पेनी, क्वालिटी इज इंटैक्ट. क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं है. ऐसा लगता है कि कहीं पर अगर हमने पैसा लगाया है, 10-20 हज़ार का कोर्स लिया है, तो वहाँ बहुत अच्छा पढ़ाया जाएगा और जो फ्री में पढ़ा रहे हैं वो शायद कम अच्छा पढ़ाएंगे. ऐसा नहीं है. मैं यही बता रही हूँ, आई एम एश्योरिंग दिस टू यू कि ये जो सेशंस होते हैं, जो ये डेली न्यूज़ एनालिसिस का सेशन है, ये उसी सेम क्वालिटी के साथ आपको दिया जाता है. अगर आप कहीं इफ़ यू बाय कोर्स ऑल्सो, तो क्वालिटी वही रहती है. ठीक है जी, क्वालिटी वही रहती है, एज इन पर्टिकुलर सेशंस के लिए कह सकती हूँ. तो यू कैन रेफर दीज सेशंस, यू कैन लेट अदर्स नो अबाउट इट ऑल्सो, सो दैट वी हैव एन एक्सटेंडेड फैमिली. नाउ कमिंग टू सेल्यूलिटिस डिसीज, ये आप देख रहे हो, हम इसकी बात करेंगे. which used to affect a few people during the rainy season is now widespread in the Karimnagar district, Telangana. तो ये जो डिसीज है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये अभी तेलंगाना के एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर फैली है. एंड बारिशों के टाइम पे मोस्टली ये डिसीज होती थी. एक स्किन इन्फेक्शन है, डीप इन्फेक्शन ऑफ द स्किन दैट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. मोस्टली ये लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी को अफेक्ट करता है, लेग्स, फीट, टोज. हालांकि ऐसा नहीं है कि इट कैन अकर ओनली इन द लोअर पार्ट. नो, इट कैन अकर इन एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, बट कॉमनली इट अफेक्ट्स द लोअर पार्ट, राइट? बाकी इट कैन अपीयर ऑन योर फेस ऑल्सो, आर्म्स, हैंड्स, फिंगर्स. देखो, ऐसा है कि अगर आपको कहीं पर कोई इंजरी हुई है, कहीं कट लगा है, कोई सर्जरी हुई है, सो यहाँ पर तब ऑब्वियसली इस डिसीज का होना थोड़ा प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है. लेकिन नॉर्मल स्किन कैन बी अफेक्टेड ऑल्सो, बट यूजुअली हैपन्स आफ्टर सम टाइप ऑफ इंजरी कॉजिंग अ स्किन ब्रेक. तो वहाँ फिर ये डिसीज जो है वो इन्फेक्शन हो जाता है ना, फिर तो वो दिक्कत है यहाँ पे. फिर इन्फेक्शन हैपन्स व्हेन बैक्टीरिया एंटर्स थ्रू दैट क्रैक और ब्रेक इन द स्किन. ठीक है, सो जो अफेक्टेड स्किन होगी वो स्वॉलन हो जाएगी, इन्फ्लेम्ड हो जाएगी, पेनफुल भी होगी, वार्म टू टच, ब्लिस्टर्स होंगे, स्किन डिम्पलिंग, स्पॉट्स होंगे. और बाकी इन्फेक्शन में कुछ सिम्टम्स ऐसे भी होंगे कि फटीग होगा, फिर बुखार हो सकता है, कोल्ड स्वेट, शिवरिंग, फीवर, नोजिया. ये सारे सिम्टम्स जो हैं, सम ऑफ द अदर सिम्टम्स अ पर्सन कैन एक्सपीरियंस. अगर इसको ट्रीट नहीं किया तो इन्फेक्शन जो है फिर वो लिम्फ नोड्स में फैलेगा, ब्लड स्ट्रीम पे फैलेगा और लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है. क्या ये डिसीज कॉन्टेजियस है? नहीं, राइट? तो
हालांकि सी दो रेयर पीपल कॉन्ट्रैक्ट cellulitis if they have an open wound or they have skin to skin contact with an infected person's open wound. तो यहाँ यही बात बोल रही है, वैसे कंटेजियस नहीं है, बट हाँ अगर स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है उसके साथ जिसको यू हैव एन इन्फेक्टेड पर्सन विद दैट ओपन वूंड और जख्म खुला है, वहाँ इन्फेक्शन हो रखा है, तो दैट वे हो सकता है. एंटीबायोटिक्स इसका ट्रीटमेंट है. ठीक है. हाल ही यूनियन कैबिनेट ने एक्सटेंड किया है पीएम आशा प्राइस सपोर्ट स्कीम इन एग्रीकल्चर 2025-26 तक. तो क्या है ये प्रधानमंत्री अन्नदाता संरक्षण अभियान? एक अम्ब्रेला स्कीम है. मकसद यही है कि किसानों को रेम्यूनरेटिव प्राइसेस जो हैं वो इंश्योर किए जाएं कि वो उन्हें उनके प्रोड्यूस के लिए दिए जाएंगे. इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स हैं. अब स्टेट इनमें से दे कैन चूज कि विच एवर वन दे विश टू इम्प्लीमेंट वो चूज कर सकते हैं. 3 कंपोनेंट में से पहला है प्राइस सपोर्ट स्कीम. तो इसी की बात कर रहे हैं. प्राइस सपोर्ट स्कीम जो है वो एक्सटेंड हुई है. इन पीएसएस फिजिकल प्रोक्योरमेंट ऑफ पल्सेस, ऑयल सीड्स, खोपरा, वो ड्राई कोकोनट होता है ना, खोपा बोलते हैं कहीं, तो उसकी बात हो रही है. तो फिजिकल प्रोक्योरमेंट ऑफ पल्सेस, ऑयल सीड्स, कोपरा, इट विल बी डन बाय द सेंट्रल नोडल एजेंसीज विद द प्रोएक्टिव रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. तो प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंदर क्या होगा कि जो पल्सेस हैं, ऑयल सीड्स हैं, ये प्रोक्योर किए जाएंगे. सेंट्रल नोडल एजेंसीज जो हैं वो इसको लेंगी. यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का एक प्रोएक्टिव रोल रहता है. एंड साथ ही साथ नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, Food Corporation of India, they will take up the PSS operations in the states and districts. The procurement expenditure and losses due to the procurement will be borne by the central government as per the norms. तो वो यही बोल रहे हैं कि इसके अंदर एक तो फिजिकल प्रोक्योरमेंट सरकार डायरेक्टली क्रॉप खरीदेगी फ्रॉम द फार्मर्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, ड्राइड कोकोनट स्पेसिफिकली. 2 एजेंसीज के नाम दिए हैं उन्होंने, मतलब नफेड और एफसीआई, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, और एफसीआई स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प से दे विल मैनेज बाइंग द प्रोसेस. कोई भी एनी कॉस्ट और लॉस फ्रॉम बाइंग दीज क्रॉप्स विल बी पेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है. अब इसके 3 कंपोनेंट्स है ना. तो दूसरा कंपोनेंट प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम, पीडीपीएस. इसमें ऑयल सीड की बात है. They will cover all the oil seeds in it that have MSP set by the government. They are covered in this scheme. अगर एक farmer they sell their produce at a price lower than the MSP, तो सरकार जो है वो farmer को पे करेगी जो भी उसका difference होगा between the MSP and the actual selling price. ठीक है. तो वो payment सरकार देगी. And this payment is made to the farmers who pre-register and sell their products in certain government approved markets. और पेमेंट जो है वो डायरेक्टली ट्रांसफर होगी किसान के रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में. अब बाकी स्कीम्स की तरह नहीं है. यहाँ पर गवर्नमेंट डज नॉट फिजिकली बाय द क्रॉप फॉर फार्मर्स. इंस्टेड फार्मर्स जो है दे आर कंपनसेटेड फॉर द प्राइस डिफरेंस. तो ये प्लीज डू अंडरस्टैंड, दे आर पेड द डिफरेंस बिटवीन द एमएसपी प्राइस एंड द सेल प्राइस. ठीक है. पायलट ऑफ प्राइवेट procurement and stockist schemes. Let's talk about this. इस स्कीम के अंदर जो प्राइवेट कंपनीज हैं they are allowed to participate in the procurement of oil seeds from the farmers. The scheme is being tested on pilot basis अभी तो. अब ये क्या है, प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ कर रही है to participate in the procurement of crops. मतलब यही है. ठीक है. So it allow the private players to step in and helps ensure कि farmers को fair prices मिले for their oil seeds. ठीक है जी, आगे बढ़े. सिक्योरिंग इंडियाज सेमीकंडक्टर फ्यूचर. दिस आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसका हर एक पहलू जो है वो हम डिस्कस करेंगे. इंडिया अपने सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को ऑब्वियसली पुश कर रहा है. पर्पस स्ट्रैटेजी यही है कि हमें डिपेंडेंसी रिड्यूस करनी है ऑन इम्पोर्ट्स और एक स्टेबल सप्लाई हो ऑफ दीज क्रूशियल कंपोनेंट्स, ये इंश्योर करना है. देखो किसी पे डिपेंडेंट रहना सही नहीं है ना. कब कोई चला जाए, धोखा दे जाए, गलत बात है. तो
अभी जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन्स होती हैं, कोविड-19 पैंडेमिक आता है, आप किसी पे निर्भर हो, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो जाए, आपको तो दिक्कत होगी। सो आत्मनिर्भर की हम बात करते हैं ना, तो वही है कि इंडिया चाहता है कि हम एक डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को पुश करें। इसी के चलते हमारा सेमीकंडक्टर मिशन भी हमने लॉन्च किया था 2021 में विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 बिलियन यूएस डॉलर्स, राइट। तो करंटली देखो, इंडिया जो है ना वो ताइवान, जापान, साउथ कोरिया इन पे रिलाई करता है फॉर सेमीकंडक्टर्स। इंडिया हैज मेड प्रोग्रेस, ऐसा नहीं है। वी हैव दिस प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स जो मैन्युफैक्चरिंग को एनकरेज करती हैं, बट चैलेंजेस अभी भी बहुत हैं। ये सेमीकंडक्टर के जो प्लांट्स लगाना है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाना, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव है, लार्ज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज चाहिए, बिजली, पानी। अब इसके बावजूद भी इंडिया सी इज बिल्डिंग दिस इंडस्ट्री एज इंश्योरिंग, मतलब एक बहुत असेंशियल चीज है ये फॉर सिक्योरिंग अ प्लेस इन द ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू चेन। सेल्फ रिलायंट तो होना ही है। तो ये ओवरऑल क्रक्स है। पहले तो मैंने आपको जो पूरा बताया ना, दैट इज द क्रक्स ऑफ दिस आर्टिकल। अब मैं आपको इंडिया का सेमीकंडक्टर को लेके करंट स्टेटस बताती हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट, इसको क्लियर कर देते हैं। देयर आई राइट। करंट स्टेटस क्या है ये आप चाहो तो लिख भी सकते हो। 2022 में सेमीकंडक्टर मार्केट इन इंडिया इट वाज वर्थ 26.3 बिलियन डॉलर्स, और 2032 तक ये बोला जा रहा है कि 271.9 बिलियन डॉलर वर्थ रीच करेगी, राइट। इंडिया इंपोर्टेड सेमीकंडक्टर्स वर्थ 5.36 बिलियन डॉलर्स 2021 में। मतलब बहुत ज्यादा आप क्रूशियल कंपोनेंट्स के लिए रिलाई कर रहे हो बाकी देशों पे। इंडिया ने एक्सपोर्ट किया वर्थ 0.52 बिलियन डॉलर्स, राइट। सरकार के मिशंस हैं, इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन है, सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम है, आपके इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस भी हैं, जैसे इंडिया ने जापान के साथ दे हैव अग्रीड टू वर्क टुगेदर टू मेक देयर सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन मोर रिजिलिएंट। सेमीकंडक्टर ना, दिस इंडस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। क्यों? पहला तो इकोनॉमिक ग्रोथ, लेट्स राइट इट डाउन हियर। इकोनॉमिक ग्रोथ, they are used in almost everything from smartphones to computers. So by growing this industry you can help your economy grow. More electronics you will produce locally now. देखो, ग्लोबल मार्केट जो है फॉर सेमीकंडक्टर वो बोल रहे हैं कि इट विल रीच 1 ट्रिलियन वर्थ डॉलर्स की बात हो रही है बाय 2030। जब इतना बिग मार्केट अपॉर्चुनिटी है तो इंडिया वांट्स टू ग्रैब ना अ गुड चंक ऑफ दिस मार्केट। जॉब क्रिएशन भी होगी फिर, राइट। अगर हमारा ये सेमीकंडक्टर प्लान सक्सीड हो जाता है तो कंट्री का इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इट कैन गो अप बाय 300 बिलियन डॉलर्स बाय 2026। नेशनल सिक्योरिटी के लिए, डिफेंस सिस्टम के लिए, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में भी सेमीकंडक्टर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो खुद की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री होगी तो आप लेस डिपेंडेंट होगे दूसरे कंट्रीज पे और अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो। और क्या होगा? सेल्फ रिलायंस। अभी आप इतना इंपोर्ट करते हो, चाइना से इंपोर्ट करते हो, खुद की इंडस्ट्री होगी तो लेस इंपोर्ट होंगे, सेल्फ रिलायंट हो जाओगे। सी, वी वांट टू बी अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन। और अभी इंडिया सिर्फ मात्र 3% कंट्रीब्यूट करता है टू दिस मार्केट। और ऑब्वियसली ये इंडस्ट्री के अंदर स्पेशलाइज स्किल्स, नॉलेज ये चाहिए है, गुड जॉब्स आ सकती हैं। लेकिन दिक्कतें कहाँ कहाँ आती हैं? दिक्कतें यही हैं कि अभी मैंने बताया था बिजली पानी वाली, इट नीड लॉट ऑफ रिसोर्सेज, वेरी एक्सपेंसिव, पावर सप्लाई कैन बी अनरिलायबल, तो इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं। दूसरा मैंने बोला कि यहाँ पर आपको स्किल्ड, हाईली स्पेशलाइज स्किल्स चाहिए इन दिस एरिया, चिप डिजाइन में, मैन्युफैक्चरिंग में। तो वहां
सेमीकंडक्टर प्रोफेशनल्स की इंडिया कुड फेस अ शॉर्टेज बाय 2027, वहाँ फिर ग्रोथ स्लो डाउन हो सकती है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है क्योंकि सेटअप बहुत एक्सपेंसिव है। अगर ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस और नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं तो इंडिया के सेमीकंडक्टर प्लान्स इफेक्ट हो सकते हैं। ये रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट इम्पैक्ट कर सकता है सप्लाई ऑफ नियॉन गैस, जो कि बहुत क्रूशियल है फॉर मेकिंग सेमीकंडक्टर्स, क्योंकि बहुत एनर्जी और बहुत पानी चाहिए सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, तो एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी हैं। फिर वी नीड टू गो विथ फॉर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो ये सारी दिक्कतें हैं, तो वी हैव टू कम अप विद द सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। देखो, चैलेंजेस हैं, उसी का ही उल्टा सॉल्यूशन है। सप्लाई चेन स्ट्रॉन्ग करो, लोकल चिप डिजाइन, इन्वेस्ट करो इन फैसिलिटीज जहां पर पीपल कैन डिजाइन चिप्स, सपोर्ट, इंसेंटिव्स, ग्लोबल पार्टनरशिप्स, ये सब किया जा सकता है। ठीक है, चलिए कमिंग टू द लास्ट आर्टिकल ऑफ टुडेज सेशन, हम बात करेंगे स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ recently cleared projects such as transmission line in the Little Run of Kutch, a controversial transmission line project in Goa's Molam National Park। तो ये स्टैंडिंग कमेटी ने ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, दे क्लियर्ड दीज प्रोजेक्ट्स। तो ये जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको कॉन्स्टिट्यूट किया अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से रिलेटेड एंड इशूइंग द अप्रूवल्स फॉर द प्रोजेक्ट्स इन प्रोटेक्टेड एरियाज, ये सारे मैटर्स से जुड़े हुए जो सरकार डिसीजन लेती है उसमें उनको गाइड करना इसका काम है। तो ये एक्ट कहता है कि विदाउट द अप्रूवल और रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, कंस्ट्रक्शन ऑफ टूरिस्ट लॉजेस, ऑफ डाइवर्जन ऑफ द वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, डी नोटिफिकेशन ऑफ टाइगर रिजर्व, ये सब नहीं हो सकता विदाउट देयर अप्रूवल। ये 47 मेंबर कमेटी है, प्राइम मिनिस्टर इसको हेड करते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के जो मिनिस्टर है वो वाइस चेयरपर्सन होते हैं। बाकी यहाँ पर इन एडिशन टू द ऑफिसेज एंड इंस्टीट्यूशंस डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, National Board for Wildlife also has Chief of Army Staff, Defense Secretary, Expenditure Secretary to the Government of India। फर्दर सेंट्रल गवर्नमेंट 10 मेंबर्स नॉमिनेट करती है, जो कोई इकोलॉजिस्ट हो, एनवायरमेंटलिस्ट हो, कंजर्वेशनिस्ट हो। तो क्या है ना, मेनी ऑफ द टास्क इट इज डेलीगेटेड टू स्टैंडिंग कमेटी, जो ये सारे फंक्शंस कैरी आउट करती है। तो यहाँ पर द स्टैंडिंग कमेटी जो है इसमें वाइस चेयरपर्सन होते हैं, मेंबर सेक्रेटरी, और 10 से ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते, जो कि वाइस चेयरपर्सन नॉमिनेट करते हैं। 2002 में ना जो बोर्ड है और जो कमेटी है उसकी पावर और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई। They had to approve all the proposals that sought permission for any, अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कोई भी एक्टिविटी होनी है तो उनका अप्रूवल चाहिए। किस तरीके से नेशनल पार्क्स की मैनेजमेंट करना है, सेंचुरीज की, प्रोटेक्टेड एरियाज की, ये सारे मैटर्स पे स्टैंडिंग कमेटी जो है ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, दे मेक रिकमेंडेशन। ठीक है जी, तो ये था आपका आज का सेशन। उम्मीद करती हूँ आर्टिकल्स क्लियर हो गए हो। कोई भी डाउट होता है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सेशन कैसे लगते हैं यू कैन गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। डू शेयर दी सेशंस विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, राइट। चलिए फिर मिलेंगे विद अदर आर्टिकल्स ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म ओनली। टिल देन टेक केयर, गुड लक, गुड विशेस। This is your mentor Arzu Kakkad signing off for today. Happy learning. All the best. Thank you.